اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ۔ تو ناظرین، صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے۔ کل جو ثانیہ کوئٹہ ہوا، تازہ ترین اپڈیٹ دے دوں اس خبر سے متعلق کہ گزشتہ روز ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ کی امام بارگاہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قریب جو خودکش دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ 65 زخمیوں میں کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ ہزارہ پارٹی، شیعہ علماء کونسل، جعفری الائنس اور مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے سوگ اور احتجاج کا اعلان۔ شہداء میں 9 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ایس پی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور شہداء کی نماز جنازہ بھی کی اپڈیٹ ہے کہ وہ ادا کر دی گئی ہے۔ تو یہ کل کا جو ثانیہ کوئٹہ ہوا، اس میں ہم شہداء کو بھی سلام پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے، اور آپ کا جو احتجاج ہے، آپ کی جو مذمت ہے، وہ بھی پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ اور اس سال ہونے والے بہت بڑے بڑے واقعات، کوئٹہ میں 10 جنوری علمدار روڈ پر دھماکے میں 100 سے زائد افراد شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 16 فروری کو 2013 کوئٹہ میں دھماکہ ہوا۔ شیعہ کلنگ کے تمام جو سلسلہ کڑی تھی وہ چلتی آ رہی ہے اس سال بھی، اس میں 90 افراد شہید ہوئے۔ عباس ٹاؤن کا واقعہ جو 3 مارچ کو ہوا، کراچی میں 50 سے زائد شیعہ افراد شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں 28 مئی 2013 ایڈوکیٹ کوثر ثقلین کراچی میں ان کے 2 بیٹوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے، اور اگر 1963 میں اعداد و شمار دیکھ کے ایک حیران آپ بھی ہوں گے کہ 1 جنوری 1963 خیرپور کا ایک ثانیہ ہوا تھا شیعہ کلنگ سے متعلق، اور مئی 2013 تک یعنی تقریباً 50 سالوں میں 21,470 شیعہ مومنین 50 سالوں میں شہید کر دیے گئے، اور یہ وہ فگر ہے جو رجسٹرڈ ہوئے، جن کی FIR کٹی یا کسی نہ کسی انداز میں وہ منظر عام پر یہ ثانیات آئے۔ تو 50 سالوں میں 21,470، ہر سال میں تقریباً 429 افراد، اور اگر ہر روز دیکھا جائے تو ایک بندے سے بھی زیادہ اموات یا شہادتیں ہو رہی ہیں، اور دوسرے دن 3 شیعہ مومنین 50 سالوں سے لگاتار 50 سالوں سے وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو مارنے والے ہیں وہ اتنے منظم انداز سے روزانہ کا ایک شیعہ مومن 50 سالوں سے مار رہا ہے، لیکن ہم جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں یا ہم جو دفاعی صورتحال ہماری ہے، ہم کیا کریں کہ یہ جو فگر ہے اس میں کمی آ سکے۔ اب اس میں بجائے کمی آنے کے، اور جو پچھلی حکومت تھی اور یہ حکومت ہے، اس کو ملا کے تو بہت شدت آ گئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا پشاور میں جمعے کو حسینیہ مدرسہ، اس میں ایک بڑا ثانیہ ہوا، اور کل کوئٹہ میں۔ تو کیا کیا جائے، اس پر بھی آپ کی رائے لیں گے۔ آج کے پہلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے جو ناظرین ہیں ان کی اگر لائیو کال نہ ملے، SMS کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اپنا احتجاج، اپنی جو بھی آواز ہے آپ ضرور بلند کیجئے۔ اور ایک تو یہی بات کہ شاید جو حکمران ہیں ان تک ہماری آواز پہنچے نہ پہنچے یا اس کا کتنا اثر لیں، لیکن کم سے کم جو شہداء کے ورثاء ہیں ہم ان کے دکھ میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں، ان کے دکھ میں مرہم رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جی، کالر کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فروغ بھائی، میرا نام سید کیسر عباس ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے فروغ بھائی میں 2 منٹ لگتا ہے لینا چاہتا ہوں جی بسم اللہ۔ کہ سب سے پہلے اپنے شہداء نوں تے میں سلام پیش کرنا وا کہ جڑے کوئٹہ دے جڑا حادثہ ہویا کل اس واسطے۔ لیکن فروغ بھائی میں تہاڈے کو بہت کافی دنوں سے سوال کرنا چاہنا، لیکن اسی کدوں تک چیزاں برداشت کرتے رہاں گے؟ ہاؤ لانگ؟ 50 سال تے ہو گئے نے تقریباً۔ ہاں جی، لیکن اپنے جڑے سید لوگ نے جڑے اسی ساری کی ذمہ داری بنتی ہے، کچھ اس بارے کری کوئی تاریخ کوئی اسی کچھ کر سکنے کہ نہیں، صرف آ جا کے اسی رو سکنے یا 1 دن پروگرام کیتا یا 2 دن پروگرام کیتا یا کچھ کیتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ویسے میں گل کرنا جڑے بھی لوگ جڑے بھی پوری دنیا چ میری آواز سنتے پے نے، لیکن جڑے پاکستان چ میری آواز سنتے پے کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے نا کہ کدوں تک یہ چیزاں برداشت کر سکتے ہیں۔ کوئی سیاسی پارٹی کوئی شیعہ آپس لڑتے پے نہیں، انہوں کی وجہ نال کسی اور دی وجہ نال فہو لاؤ جی ساڈے تے جہاد یا کوئی چیز کدوں لازم ہوئے گی جدوں ساڈے اینڈ تک جدوں سارا اسی ختم ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، تھوڑا پیغام پہنچ گیا محترم سید کیسر عباس صاحب، جزاک اللہ، مولا علی مدد۔
جی کچھ تو سوچیں، 50 سال 21,470 روزانہ، بلکہ ہر دوسرے دن 3 شیعہ شہید ہو رہے ہیں 50 سالوں سے. اور بالکل، اور ہم لوگ اتنے بے حس ہو گئے کہ ہم دیکھتے ہیں احتجاج کرتے ہیں زباناً، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر کل ہوگا، پھر احتجاج کریں گے. فاروق بھائی، اگر ہم چہلوں میں امام حسین کا صرف جلوس لے لیں پاکستان میں کسی بھی ایک جگہ سے، تو اس میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے جلوس میں وہ مجمع اتنا نہیں ہو سکتا. تو یہ شیعہ قوم، اگر پاکستان میں ساری شیعہ قوم ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہو جائے تو پھر کہیں جا کے کوئی جسے کہتے ہیں کہ انقلاب آئے گا. جی ہاں، یا کسی دشمن کو تھوڑا سا یہ احساس ہوگا کہ کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہونے والا ہے. یہ 21,470 لوگ ہمارے جو شہید ہوئے 50 سالوں میں، ایک خبر نہیں ہے کہ دشمن کے بھی 4 لوگ بھی ہم نے مارے ہیں یا 20 لوگ جو ہیں وہ مارے، اس انداز میں نہیں کہ ہم نے وہ اس کا مقابلہ دفاع کرتے ہوئے. یہ کیا اب یہ رکھیں گے، یہ کیا کہیں گے جناب کہ شہیدوں کو جو ہے ان کو ماہانہ پیسے دیے جائیں شہیدوں کے ساتھ، یہ مذاکرات ان کے ہوں گے. کوئی ایک ایسا پریکٹیکل ایکشن نہیں ہوگا. اور کل کا جو ہاسپٹل کا آپ بتا رہی ہیں، ناظرین سے بھی شیئر کریں گے، کوئی وہاں پہ ڈاکٹر سب بھاگ گئے کہ وہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز جب شہیدوں کی لاشیں یا زخمی پہنچے تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ پچھلا جو حادثہ ہوا تھا کہ ہاسپٹل میں پھر بلاسٹ ہوا تھا، تو یہاں تو ڈاکٹر تھے ہی نہیں وہاں پر. جو برا حال ہے، اور ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، شاید ناظرین نے بھی دیکھی ہو، تو اس کو تو دیکھ کے آپ روئیں گے. یعنی ڈاکٹرز کو پتہ ہے جہاں شیعہ زخمی بھی لائے جائیں گے یہاں پر بھی دھماکہ ہو سکتا ہے، تو ہم اپنی جان بچائیں. تو یہ ناظرین صورتحال سب کے سامنے ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی مدد. مولا علی مدد بیٹی بطول سسٹر، بہت شکریہ بیٹے. انکل ثانیت بیٹا امام زمانہ کو آپ کا تمام مومنین کو تعزیت پیش کرتی ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جیتی رہو بیٹا. جی سنائیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے، سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. سجاد زنجیر جوانی وچ، سجاد زنجیر جوانی وچ، باقر بچپن وچ پائے. سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. بازار دی بھیڑ کی باقر اپنے بابا ساری تو جائے. بازار دی بھیڑ کی باقر اپنے بابا سارے تو جائے. اور دیکھتا صحیح پئی تر دیے، اور دیکھتا صحیح پئی تر دیے، ہن بڑھ کے آن دی مائے. سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. پتھراں دے مین سے باقر کو نہیں دکھے اپنے زخماں دا. پتھراں دے مین سے باقر کو نہیں دکھے اپنے زخماں دا. ناموس دو دیکھ کے روندا، ناموس دو دیکھ کے روندا، نہ لبدا ٹران درائے. سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. جیتے رہو بیٹی، بہت شکریہ. جزاک اللہ بیٹی. بہت سی کالرز ہیں، آپ کی حاضری ہوئی، آپ نے تعزیت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو اگلے کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب. بہت شکریہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے. پاکستان میں کوٹہ پر ایک مرتبہ پھر قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے، اور
यजीदी और खारजी टोले ने एक मरतबा फिर मोमिन पर हमला किया है। हम मजलिस उलमा शिया यूरोप की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। अब तो अल्फाज भी छोटे पड़ गए हैं। आए दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। कोयटा में वाक़या हुआ, पेशावर में हुआ, और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह के करीब जो हमला हुआ जिसमें 30 के करीब मोमिन शहीद हो गए हैं और 65 के करीब जो हैं वो जख्मी हैं, जिनमें से 20 की हालत जो है वो खतरे में है। अल्लाह। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जिस तरह उसने इंतखाबी मुहिम में बुलंद दावे किए थे कि हम दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे, मुल्क में अमन व अमान कायम करेंगे, तो अब सबसे पहला जो मसला इनके लिए यही होना चाहिए, बजाय इसके कि ये दहशतगर्दों से गठजोड़ रखें, उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश करें। ऐसे मलऊनों और यजीदियों के साथ मुज़ाकरात होते हैं कि जो आए दिन न बच्चों पर रहम कर रहे हैं, न ख़वातीन पर रहम कर रहे हैं, और न मस्जिद का तकद्दुस उनके सामने है, न इमाम बारगाह की उनको परवाह है, न अस्पतालों की, न नमाज जनाजा की, न छोटे बच्चों की। शीरखार बच्चों को मारा गया है और इसमें 9 ख़वातीन भी शहीद हुई हैं। तो ऐसे जालिम और दरिंदे जिन्होंने इंसानियत की बू भी नहीं सूंघी, ये वो खतरनाक तरीन लोग हैं जो इंसानियत के माथे पर कलंक का टीका है। तो हम एक मर्तबा फिर जो भी हुकूमती एजेंसियां हैं जो अमन व अमान कायम रखने के जिम्मेदार हैं और जिन पर अरबों रुपया खर्च हो रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मुल्क में अमन व अमान कायम करें, और खुद उन एजेंसियों में आपस में हम आहंगी नहीं है, बल्कि बाज़ एजेंसियां तो दूसरे मुल्कों के एजेंटों का रोल अदा कर रही हैं। इसलिए पाकिस्तान में अमन व अमान कायम नहीं हो रहा और दहशतगर्दी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। और बारहा हम कह रहे हैं कि ऐ साहिबान इक़्तिदार, होश के नाखन लो, अगर तुम चाहते हो इस मुल्क को बचाना, ये मुल्क बाकी तभी रह सकता है जब इस मुल्क के बाशिंदों की जान माल इज्जत व नमूस की हिफाजत हो। ये कितने दहशतगर्द हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की को 10 लाख से ज्यादा फौज है, कितनी एजेंसियां हैं, कितनी पुलिस है। अगर ये अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते शहरियों को, और ख़ुसूसन शिया मुसलमानों की खून से जो होली खेली जा रही है, और पिछले 50 सालों से जैसा कि आपने अदाद शुमार बताए हैं, हजारों शिया मुसलमानों का खून किया गया है। अगरचे हमें मालूम है कि हमारे आइमा ने फरमाया है, कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला, शियो तुम्हारे लिए हर दिन आशूर का दिन है और हर जमीन करबला की जमीन है। क्योंकि हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद के दामन को पकड़ा है, हम अली वलीउल्लाह की गवाही देते हैं, देते रहेंगे, और हमने पहले भी कुर्बानियां दी हैं, आइंदा भी कुर्बानियां देते रहेंगे। हमारी तारीख जो है वो कुर्बानियों से मामूर है, और हम इसी तरह अपने अतहार के दामन को थामे रखेंगे। क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत, इन्हीं के दामन से मुतमस्सक रहना ताकि तुम्हारी निजात हो सके और हरगिज गुमराह नहीं होगे। ये वो टोला है जो गुमराहों का टोला है, जो कि दहशतगर्दी के रूप में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है और बंदूक के जोर पर चाहते हैं कि अपने नजरियात दूसरों पर थोसे जाएं, जबकि इस्लाम ही कहता है, कुरान ही कहता है, ला इकरा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। ये किसी भी किस्म की आज़ादी के कायल नहीं है, ना ये तालीम के हक में है, ना खवातीन की तालीम के हक में है, ना मदरसों के हक में है। तो ये इंतहाई दरिंदे लोग हैं, और जो लोग इनकी पुष्टपनाही पर हैं,
जो हुकूमतें इनको फंडिंग कर रही हैं, जो इनको ट्रेनिंगें दे रहे हैं, जो इनको सहूलतें दे रहे हैं, और ये नवाज शरीफ की हुकूमत जो कि इनके साथ गठजोड़ किए हुए है, और अभी तक इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की कि किस तरह से इन जालिमों से निपटा जाए, बल्कि इनसे मुज़ाकरत करने के लिए कह रहे हैं। तो हम एक मरतबा फिर भरपूर मजम्मत करते हैं पेशावर, कोयटा और जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दी हुई है, और शहीद अल्लामा सैयद आरिफ अल हुसैनी के मदरसे में जो हुई। तो मजलिस उलमा शिया यूरोप का कल कन्वेंशन हो रहा था, उसमें ये अंदोनाक और गमनाक खबर मिली, जिस पर तमाम शुरकाए और सदर मोहतरम जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब ने अपने रंजो गम का ऐलान किया, और हम एक दफ़ा फिर मजम्मत करते हैं। और हदायत टीवी जो मजलूमों की आवाज़ है, जो पूरी दुनिया में इस आवाज़ को पहुंचा रहा है, और शिया खुसूसन जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं उनकी आवाज़ को पहुंचा रहा है। खुदावंद आलम इस आवाज़ को मज़ीद आगे बढ़ाए, और जितने भी मोमिनीन जो इस गमनाक खबरों पर अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, खुदावंद आलम उनकी भी हिफाजत करे, और शहीदों की और उनके खानदानों की हमें सबको कफालत करने की और उनकी मदद करने की। मौलाना साहब एक बात पूछना चाहूँगा, आप हम मेरे साथ रहिएगा। जी मौलाना साहब, कल जैसे आप बता रहे हैं मजलिस उलमा शिया का कन्वेंशन था और उसमें आपको इस साने की इत्तला मिली, तो उस कन्वेंशन के बाद फिर कोई ये फैसला किया गया कि इस साने पे अब क्या एहतजाज का क्या सिलसिला होगा, या प्रोटेस्ट किस अंदाज में अब दोबारा शुरू किया जाएगा, कुछ इस बात पे फैसला हुआ? जी अभी इसका गौर फिक्र हो रहा है कि किस तरीके से इस पर एहतजाज किया जाए, और किस तरह से पाकिस्तान के जो मुतल्लिका अदारे हैं या सफारत खाने हैं, या तो इस पर अभी गौर फिक्र हो रहा है, तो इंशाअल्लाह जल्दी ही लाए अमल दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब, नाज़रीन हमारे साथ थे, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, और मजलिस उलमा शिया यूरोप की भी आप नुमाइंदगी कर रहे थे। तो जैसे मौलाना साहब ने फरमाया गौर व फिक्र हो रहा है। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कब तक हम ज़बानी एहतजाज करते रहेंगे, हम कब तक, कुछ अमलन ऐसा होना चाहिए कि बस अब मतलब हद हो गई है, अब हमें कुछ प्रैक्टिकली, अब हम लोगों को शियाओं को कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। दोनों अतराफ़ है ना, देखें अब मजलिस उलमा शिया या कोई भी शिया तंजीम है, उनसे हम बहुत से सवालात पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया, या गौर व फिक्र 50 सालों से वो कर रहे हैं, तो जो मारने वाले वो तो इतना गौर व फिक्र नहीं कर रहे, वो तो सबको, ख्वातीन बच्चे सबको मार रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर यही उलमा कराम हमें कॉल दें आज, ये आइंदा कलाम लहाव जी एम्बेसीज के सामने आपने आना है, तो कितने लोग जो हम कहते हैं कि ये हमारी जो तंजीमें हैं कुछ नहीं करती, तो ये अगर कॉल्स दे तो हम कितना इनको लब्बैक कहते हैं। तो ये दोनों तरफ से, ये जो हम भी बिल्कुल ख्वाब खरगोश की तरह एक मज़े लूट रहे हैं कि चले 50 शिया उधर मरे हैं, 50 उधर मरे हैं, 21,000 जाने गई हैं, तो कौन सा हमारे कोई गए हैं। तो हम भी जो एक बेहिसी है पूरी कौम में, वो 5 करोड़ अफराद की, वो मजमूई तौर पर एक सबकी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ शिया उलमा कौंसल या किसी भी शिया तंजीम की। बिल्कुल, और एम्बेसी के आगे पहले भी हम कई दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, इवन कि हम शहीदों की लाशों के आगे भी बैठ के 36 घंटे एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम सब की नज़रें जो है वो उलमा कराम के फैसलों पर होती हैं, सबकी नज़रें उन्हीं के डिसीजन पर होती हैं ना सब कुछ। तो उलमा कराम को वाकई जैसे अभी कह रहे हैं गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो हम सब तमाम जितने भी पाकिस्तान के शिया, दुनिया भर के शिया, इन तंजीमों से हमें उम्मीदें हैं कि ये कुछ करेंगे, उनको भी हमसे उम्मीद है, उनको भी हमसे उम्मीद है, उनको भी बिल्कुल बैकफुट पे या बाज़ औक़ात जो पसपाई होती है, हम कहते हैं जी ये क्या हो गया, तो वो उनको मजबूरन भी करना पड़ता है, क्योंकि पीछे जब वो नज़र दौड़ाते हैं तो आस्ता आस्ता जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनके टाइम कहते हैं कि मैंने जॉब पे जाना है, अब मैंने बच्चे को स्कूल लेने जाना है, तो उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। तो बाज़ औक़ात हम सारा मलबा डालते हैं इन तंजीमों पर कि ये कुछ नहीं कर रही, हम खुद भी अपने अपने गिरबानों में देखें कि हम 50 सालों से क्या करते आ रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, आपको अजमा को सारे मोमिन को मेरा बहुत बहुत सलाम। कल के कोयटा के वाकया जो हज़ारा टाउन ब्रोरी में एक मरतबा फिर शिया ने हैदर करार को ये हज़ारा कह के जो ये हादसा किया, और ये तो हमेशा होता रहता है, इसका इलाज क्या है, ये तो नामुमकिन है। जब तक ये हुकूमतें ऐसी चलती रहेंगी, ये ऐसी शियों का कत्ल होता रहेगा, और जब तक हम शिया भी आपस में मुत्तहिद ना हो तो ये हम बंद भी नहीं कर सकते, और हम
اور जंगीर साहब एक चीज़ मैं जो पूछना चाहूँगा, आप वहाँ के रिहायशी भी हैं, बताया जा रहा है वहाँ के CCPO ने बताया कि 25 से 50 जो नाके हैं वो वहाँ हज़ारा बरादरी, शिया बरादरी के पास होते हैं, तो क्या उनके पास कोई ऐसे आलात हैं डिटेक्टिव्स के, वो ऐसे जो मवाद है, जो बारूद है, उसको पहचान सके, उसको चेक कर सके, कोई ऐसी चीज़ें भी हैं या सिर्फ असले हैं उन चौकियों पे? फारूक भाई देखिए, शहर है, उस शहर में शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं। हर आदमी को तो हम तलाशी तो हम नहीं ले सकते। सिर्फ अलमदार रोड की तरफ जो है वहाँ पे जो हमने वहाँ पे जो बैरियर्स लगाए हैं वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो बाकी जो शहर की दूसरी तरफ है, जो बरोरी है जिसको हज़ारा टाउन भी कहते हैं, वहाँ पे ठीक है कुछ न कुछ तो है, लेकिन फिर भी आने जाने वाले गाड़ियों में हर गाड़ियों को तो चेक नहीं हो सकता ना। हर क्या, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि ये जो बॉर्डरों से जो ये चमन के रास्ते आती है सारे, और ये सारे यहाँ से असला वगैरह आते हैं। तो कल पिशावर में भी हादसा हुआ, ठीक है हम ब्लेम करते हैं, 18 आदमी वहाँ पे भी शहीद हुए। और कोयटे का तो देखे कि ये जो बंदा था एक सुना साइकिल पे ही आ रहा था, इसने देखा शायद भी ये इमाम बारगाह की तरफ जा रहा था, और इसने दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया, जानों को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये सारी हुकूमत की कमजोरी है, और ये सारा कानून की जो बालादस्ती नहीं है पाकिस्तान में, ये इसके सऊदी अरबिया में क्यों आज कोई नहीं मर रहा है, कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, और वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। देखे तो ये पाकिस्तान में जो कुछ होता है, जो पकड़े भी जाते हैं वो डरा डरू के जज को भी पुलिस को भी पैसे दे दो कि निकल के वो भाग के चले जाते हैं, फिर वही आके फिर दोबारा वो अटैक करते हैं। बिल्कुल हकीकत है। जस्टिस सैयद मकबूल बाकिर वाला वाकया कल मुत्तहिद हो जाए, जब तक हमारा एक इत्तेहाद नहीं होगा हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, और ये मसला हल होने वाला नहीं है। हम दुआ करते हैं कि हमारे में इत्तेहाद हो, और ये शहादतें तो हमने दी हैं जितनी, और हम देते रहेंगे और हमेशा भी और भी देते रहेंगे। तो मौला हुसैन ने अपनी जान दी है शिया कह के, जो नवासे रसूल है, तो हम तो हज़ारा कुछ भी नहीं है। तो सारे शियान के लिए हमारी दुआएं। कराची में भी देखिए कितने बुरे हालात है, कितने 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 शहीदों को वहाँ पे शहीद किया जा रहा है शिया के नाम पे। बिल्कुल। तो यही है कि इत्तेहाद की सबसे बड़ी चाहिए, और कानून की बालादस्ती। हमारी दुआएं उनके लिए, बस हम दुआ करते हैं कि कोई रास्ता निकल आए। मोहतरम बहुत शुक्रिया तैयब अली चंगेज़ी साहब, लंदन से आप कॉल कर रहे थे, और वैसे भी आप कोयटा के रिहायशी भी हैं, तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं वहाँ पर क्या हमारी कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। बिल्कुल सही बात उनकी कि चौकियाँ या जो भी प्राइवेटली अगर हम कोई ऐसा बंदोबस्त करें भी, तो हमारे पास वो हालात नहीं हैं कि जिस तरह हम वो उसको चेक कर सकें, या किस अंदाज में। अब तो ख़वातीन की जो बस थी यूनिवर्सिटी की, उसमें तो एक लड़की, जी हाँ, तो वो लड़की ने वो धमाका किया, तो इसमें बहुत सी चौकन्ना होने की ज़रूरत है। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहन आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम जी। बेकर भाई से मैं 2 मिनट आपके लूंगा फारूक भाई जी। बट सर, विरदे अली सुबह शाम करता हूँ, विरदे अली सुबह शाम करता हूँ, या अली तेरे चाहने वालों को सलाम करता हूँ। अदावत नहीं किसी मुसलमान से हमें, अदावत नहीं किसी मुसलमान से हमें, मगर नस्ल यजीद, नस्ल हिंदा, नस्ल माविया पे लानत सरेआम करता हूँ। फारूक भाई बहुत अफसोस के साथ 1-2 दिन टीवी नहीं देखा, और ये सुबह सुबह उठे और इतना बड़ा हादसा सुन के यकीन माने कि हम दोनों मियाँ बीवी रोने लगे इधर कि या अल्लाह पाक हमारे इमाम का ज़हूर फरमा दे, हमारे इमाम का ज़हूर फरमा दे। और ये वही लोग हैं फारूक भाई कि जो लोग माविया को मानने वाले हैं, यजीद को मानने वाले हैं, हिंदा को मानने वाले हैं, सरेआम फारूक भाई सरेआम आज लुटन में देखे, इंग्लैंड में देखे, सरेआम बैठ के कहते हैं कि शिया काफिर है। लेकिन हमारी क़यादत कहाँ गई? हमारी क़यादत उनको भरपूर तरीके से जवाब क्यों नहीं देती फारूक भाई? ठीक है हम कमजोर हैं मानते हैं, लेकिन हमारे पास जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत की तो ताकत है, इससे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। मैं बहुत तज़ियत पेश करता हूँ जनाब तैयब भाई के साथ, और जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ वाक़यात हुए हैं फारूक भाई, ये कौन सी बेगैरत किस्म की हुकूमत है जो बनने के साथ ही ये सऊदी गवर्नमेंट वहां चली गई और वहां पैसा दौलत सब कुछ देती है, और नाम लेके फारूक भाई छोटे छोटे बच्चों औरतों को कत्ल किया जा रहा है सिर्फ शिया के नाम पर। कोई और कत्ल नहीं होता। मैं दावे से कहता हूँ फारूक भाई, कोई जो कहते हैं दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े सुन्नी हैं, ये बिल्कुल झूठ है, झूठ है, ये बिल्कुल सामने की बात है। आपके हमारा साथ क्यों नहीं देते? मैं कश्मीर से लेकर सिंध तक सिर्फ इंसानों से अपील करूंगा जिनके दिल में मोहब्बत है। मेरा किसी मजहब से कोई तल्लुक नहीं है। अगर कोई हिंदू भी है वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है।
ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیے، چاہے وہ مسلمان کلمہ ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو. ظالم ظالم ہے فاروق بھائی، ظلم کے خلاف ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے. افسوس، صد افسوس، لیکن لعنت کرتے رہیں گے فاروق بھائی، ضرور کرتے رہیں گے. ہماری گردنیں کٹ جائیں. یہ وہی مسلمان ہیں جب مولا کائنات کی تلوار ان کے گردنوں پہ آئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور بعد میں نبی کی اولاد کو کاٹ ڈالا. یہ وہی لوگ ہیں، وہی ماننے والے ہیں. میں نے ابھی جو عمرہ کر کے آیا، یہی یزیدی وہاں سب کھڑے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہو رہا. ایک آدمی کے پیچھے 5 آدمی لگے ہوئے سیکورٹی کے، اور وہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. ہماری گورنمنٹ ان کے پیسوں پہ پلتی ہے. لعنت ہو ایسی گورنمنٹ کے اوپر جو بچوں کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی. فاروق بھائی، ہم رو کے اللہ کے حضور سے دعا کر سکتے ہیں، احتجاج بلند کر سکتے ہیں، غصہ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. اللہ علماء اکرام کو صحت، سلامتی اور اچھے طریقے سے کوئی لائے عمل تیار کرنے کی امام زمانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب، لوٹن سے آپ شامل تھے. وہ کہہ گئے کہ ہم کمزور ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہم کمزور نہیں ہیں، ہم صبر کرتے ہیں یا صابر ہیں. ہم کمزور قوم نہیں ہیں. بالکل، جو اتنے خون، جو ایک ہر ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو لاہے عمل ہے یا جو ہمارا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، اس میں بہت سی کمزوریاں ہیں. شاید وہ ایسے کہہ جو گئے بندہ کہ جان کر دینے والا وہ کمزور تو اس انداز میں نہیں، لیکن جو ہمارا طریقہ کار یا ایک ہونا چاہیے ان کے ساتھ، کس طرح سے ہم ان کو فیس کریں، تو اس حوالے سے ہماری کمزوریاں ہیں اور سیکیورٹی کی کمزوریاں ہیں. لیب سے ہماری بہت صرف یہ کمزوری ہے کہ ہم اب تک ایک نہیں ہو پا رہے ہیں، ورنہ ہم کسی طرح سے کسی طور سے کمزور نہیں. ہمارا 6 مہینے کا بچہ بھی آ جائے تو وہ بھی کمزور نہیں. بالکل صحیح ہے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی مقصود حسین صحیح صاحب، بہت شکریہ. فاروق بھائی، چھوٹے بڑے حالیہ 40 واقعات ہو چکے ہیں تقریباً. یہ سانحہ کوئٹہ کا کون سا نمبر، آپ اس پر نمبر لگا کے رکھیے تو ہم سمجھیں گے. جب آپ آن ایئر تھے تو ابھی پشتن خرا میں موٹر سائیکل سوار نے پولیس والوں پہ فائرنگ کی اور 2 آدمی ہلاک کر دیے. بات یہ ہے کہ ہماری صبح دہشت گردی کی خبر سے شروع ہوتی ہے اور شام بھی اسی پہ ہوتی ہے. ابھی حکومت نے ابتدائی کی ہے. ظاہر ہے دہشت گردوں کے وکیل بھی یہی حکومت کے کارندے ہیں جن پر اعتماد کر کے وہ اپنا سالس مقرر کرتے تھے. بات یہ ہے، ورثاء کو ہم جانتے نہیں. حکومت وارث نہیں، قاتل ہے. ایجنسیاں وارث نہیں. میں اور آپ کیسے تعزیت حاصل کر سکتے ہیں، کیسے تعزیت کر سکتے ہیں یا قبول کر سکتے ہیں؟ آپ حکومت کی ضد پر تعزیت کے لیے یہی کافی ہے. اصل میں جب تک ہم حکومت کو پارٹی بنا کر اس کے خلاف مقدمہ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا. نفرتیں یہاں تک پھیلا دی گئی ہیں. میں آن ایئر کہتا ہوں، مبہم الفاظ میں کہوں گا، میں ایک پچھلے ہفتے ایک جنازہ میں شامل تھا. ایک بھائی کا جنازہ ایک شیعہ امام بارگاہ میں رکھا گیا. بڑا بھائی 200 گز دور بیٹھا رہا، سارا دن وہاں میت کے پاس نہیں آیا جب تک کہ وہاں میت لے جائی نہیں گئی. کچھ رشتہ دار انتظار کر کے واپس چلے گئے. ہم دونوں جگہوں پہ شامل تھے. جہاں میں نے جنازہ پڑھا وہاں سنی بھی شامل تھے. جہاں اہل سنت والجماعت کے مسجد میں وہاں ہم نے نماز بھی ان کے ساتھ پڑھی. یہ نفرت اتنی پھیلا دی گئی ہے کہ میں آنیر اور بڑے سوچے سمجھے الفاظ میں کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات کہوں کہ میرے دوست جو بچپن سے میرے دوست ہیں انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ شیعوں کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ غسالہ کا پانی جو میت کو غسل دیتے ہیں اس پانی میں چاول پکاتے ہیں، یہ 1400 سال پرانی بات ہے. جو معاویہ بن ہندا نے شروع کی تھی وہ باتیں آج ہو رہی ہیں اور ہم انہیں سفر کر رہے ہیں. جتنا تک ہم حکومت کے خلاف ریٹ نہیں کریں گے، اس کی ریٹ کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے اور دنیا کو یہ نہیں بتائیں گے کہ شیعوں سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہم حکومت کے خلاف مقدمہ نہیں کریں گے. میں تعزیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہ میں اس کا قائل ہوں. اپنے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. بالکل صحیح. ایک ایسا لائے عمل اپنانا ہوگا اور جو ایک نفرت کی فضا شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اب
इंसानियत के नाम पे, जैसे इससे पहले भी भट्ट साहब आए थे, कि हम ये नहीं कहते कि आप शिया हैं तो आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, या आप ही के लिए ये एक है कि खून अगर कहीं बहा गया है और आप इसकी मजम्मत करें इसलिए कि आप शिया हैं। जो दीगर इंसान हैं, जो जिनके दिल में जो भी, अगर कोई माँ है, कोई बाप है, किसी भी रिश्ते में कोई, आप देखें कि कोई भी बाहर निकलता है और उसकी जान इस तरह से चली जाती है, इस प्लेटफॉर्म पे तो हर अंदाज में जहाँ भी जुल्म हुआ है उसकी मजम्मत की गई है। तो ये प्लेटफॉर्म, टेलीफोन नंबर आपके सामने, तो आप भी, जो लोग, ज़रूरी नहीं कि आप शिया हों, किसी भी मसलक से हों, किसी भी मज़हब से हों, आप आइए, एहतजाज बुलंद कीजिए और इस वाक़े की मजम्मत कीजिए और ये दलील दीजिए, ये सबूत दीजिए कि आप हमारे साथ हैं और आप इंसानियत के साथ हैं, आप हक़ के साथ हैं। तो जैसे शाह साहब ने कहा कि हुकूमत, कौन सी हुकूमत, जो 50 साल से तो अभी ये सिलसिला जारी है, किस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया जाए, और ख़ास तौर पे ये हुकूमत जो आने से पहले ही 112 दहशतगर्द जो लश्कर जंगवी के थे उनको छोड़ दिया गया इस नजराने के लिए, या इस तोहफ़तन उनको छोड़ दिया गया कि नई हुकूमत जो आने वाली है वो शायद आप ही की आने वाली है। अब कल का वज़ीर आज़म के हवाले से हमने कोई बयान नहीं सुना कि उन्होंने इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है। अदलिया जो अदालत है, बहुत बड़ी अदालत है, उन्हीं के जो मातहत हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मशीर आलिम साहब, उनका कहना है कि 135 कातिल जो हैं, जिनको सज़ाए मौत जो है वो नाफिज कर दी गई है, उनको सज़ा सुना दी गई सज़ाए मौत के 135 कैदी सिंध की जेलों में मौजूद हैं। तो इफ्तिखार चौधरी या किसने क्या एक्शन लिया है कि 135 लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए? तो जो हक़ वाले हैं, पिछले दिनों 5 दिन पहले जस्टिस सैयद मकबूल बाकर पर कातलाना हमला हुआ, एडवोकेट, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, मज़दूर सब कत्ल हो रहे हैं, लेकिन जो हुक्मरान हैं, और बहुत अफसोस की बात है कि हम खुद जो है 50 सालों से शायद उम्मीद पे उम्मीद लगाए जा रहे हैं, उम्मीद पे उम्मीद लगाए जा रहे हैं। खुद जो नाइतफाकी है, बड़ी मिसाल हमारे शाह साहब ने दी कि हम बहुत दूर बैठे हुए हैं आपस में एक दूसरे के, वैसे शायद मिलते हैं, हेलो हाय भी होती है, या और बाज़ों का तो वो भी नहीं होती, लेकिन हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम सब कुछ होता है, लेकिन दिलों में अभी तक दूरियां मौजूद हैं। एक एक दूसरे के हम पाँव काटने में लगे हुए हैं कि एक अगर ऐसे है तो वो दूसरा जो है वो उसी के मनसे पे आना चाहता है या उसकी टांग खींचना चाहता है। तो जब तक ये कमियां हमें नहीं कवर होंगी तो इस तरह हम खुद ज़िम्मेदार हैं। ये जो 21,470 अफराद शहीद हुए 50 सालों में, सब बंदे इसके ज़िम्मेदार। और शाह साहब ने सही कहा कि हम किस मुंह से किसी की ताज़ियत पेश करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाके हम खुद इसमें मुलव्वस है, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी वो जालिम का साथी है। बिल्कुल, और वही एक रिक्वेस्ट जो हमेशा होती है कि इन शहीदों को हमें ज़रूर याद रखना है, इनके घर वालों, जो भी शहीदों के घर वाले हैं उनकी मदद हमें करनी है। हिदायत टीवी ने पहले भी की थी और अब भी करेगा। जी, ये भी एक सिलसिला होना चाहिए। बिल्कुल, अब भी जहाँ करेगा। मरहम रखने वाला नहीं है, डॉक्टर्स भाग गए हैं, एम्बुलेंस लाने वाला कोई नहीं, तो वो एक और जिम्मेदारी जो है वो तो है ही है। अगले कॉलर हमारे इंतजार में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरूक साहब, मैं मोहम्मद शकील लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब। जनाब आपको और बेटी उस्मा को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ और अपनी वाइफ की तरफ से भी सलाम पेश करता हूँ। शुक्रिया। तो बात ये है, जो कोयटा में जो पेशावर में हादसा हुआ है, इसकी पुर मजम्मत और निजामत करता हूँ। और बात यह है कि अली अलैहिस्सलाम के शेरों को नसीहत करता हूँ कि अल्लाह ताला के हुक्म के नाम के ऊपर अपनी हिफाजत खुद के लिए खड़े हो जाओ और इसका इन शैतानों का मुकाबला करो। शैतान की कोई असलियत नहीं है। अल्लाह ताला के नबी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शेर ऐसे शेर हैं कि जब वो नारा मारते हैं तो दुनिया कांपती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये शैतान क्यों नहीं कांप रहे। इनका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाओ और इनका मुकाबला करो। ये कोई गुनाह नहीं, ये कोई ज्यादती नहीं कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अपनी जान बचाना फर्ज है। जहाँ भी हो अपनी जान की हिफाजत करो, लोगों के ऊपर मत छोड़ो, हुकूमतों के ऊपर मत छोड़ो, मामला के ऊपर मत छोड़ो। जिनके घर में ये अपना होता है उनके घर में फरूक साहब क़यामत आ जाती है। उन लोगों को के दिल को देखो कि उनके साथ क्या हो रहा है, ये हुकूमतें क्या करेंगी, या मोल हम लोगों को रोक रोक कैसे बताएंगे कि इनका मुकाबला करो। ये हजरत अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम साहब ने क्या मुकाबला नहीं किया? शैतानों का मुकाबला करना चाहिए। खड़े हो जाओ और अपनी जान बचाओ और शैतानों से मुकाबला करो डट कर, जिस तरह अल्लाह ताला के नबी ने किया, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किया।
इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ और मुसलमानों को और अहले शिया को अर्ज करता हूँ कि अपनी जान की हिफाजत खुद करो और दलीला का अलाम का नाम लेकर किसी को सामने ना दो और अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इबादत करो। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और आप शहजादों को और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया और सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद याकूब साहब लंदन से आप शामिल थे और अपनी हिफाजत खुद करने का आपने पैगाम दिया। बिल्कुल, और ईमेल शामिल करेंगे। आसमा हाशमी ने पाकिस्तान लाला मूसा से ईमेल की है और बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया है, ताज़ियत पेश की है और यजीदियों पे लानत की है बेशुमार उन्होंने। और उसके बाद हमें ईमेल की है शफ़क़ बतूल ने और उन्होंने भी ताज़ियत पेश की है पूरी फैमिली की तरफ से। वो बहुत ज़्यादा मज़म्मत करती हैं। स्पेन से उन्होंने ईमेल की। जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम नकवी साहब का सलाम कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। बात यह है कि जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ ऐसी क़ुव्वतें शामिल हैं इंटरनेशनल कि जो इस्लाम और पाकिस्तान को मुतज़ल्ज़िल देखना चाहती हैं, गैर मुस्तहकम देखना चाहती हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है। उनको कुछ ऐसे उलमा हाथ आ गए हैं जो डॉलर और दूसरे रकूम हासिल करके मुसलमानों के खिलाफ नबर्द आज़मा है और इसमें वो सुन्नियों को भी मार रहे हैं, शियों को भी मार रहे हैं। शियों को मारना उनके फर्ज अवलीन है। वो समझते हैं कि काफिर हैं, जबकि वो ये खुद नहीं जानते कि लफ्ज़ काफिर के मानी क्या है और इसका इतलाक़ किन लोगों के ऊपर होता है। लेकिन उनको ये समझा दिया गया है कि आप जब वो कर रहे हैं, मुजाहिदा कर रहे हैं और आपको बिल्कुल जवाज़ हासिल है कि आप शियों को भी मारें। लेकिन सिर्फ शिया नहीं मारे जा रहे हैं सुन्नी भी। नमाज जनाज़े में भी वो मारे जा रहे हैं। उनके स्कूल भी तबाह हो रहे हैं, उनकी मसाजिद पर भी हमले हो रहे हैं। ये बात नहीं है, मारे उनको भी जा रहा है। तो ये जो क़ुव्वतें हैं जो डॉलर देती हैं या बाज़ औक़ात सियासी पनाहें भी देती हैं, वो सब मिलके कुछ उलमा को अपना आलाकार बनाए हुए हैं और इससे हम मुसलमानों के अंदर इंतशार फैला जा रहा है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान को बिल्कुल गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। एक बात मैं आपको बताऊं कि हमें अफसोस होता है किसी भी मुसलमान के मरने का, ख़ासतौर पर चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो। लेकिन जाहिर बात है कि अपनों का गम अपना ही होता है और अपनों का गम इस तवातुर से हो रहा है कि बकौल गालिब आंसू वो बकौल फानी आंसू हैं कि खुश्क हुए हैं, जी है कि उम्दा आता है, दिल पे घटासी छाई है जो खुलती है न बरसती है। और वो बात है कि वो दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। तो एक ऐसा वक्त आ गया है कि अब हम यानी रोने से भी हमारे आंसू जो है वो नहीं टपकते रोने के लिए। वो जो बकौल शायर कुछ कहते हैं, मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी दिल पर गुजरता है कि आंसू खुश्क हो जाते हैं, तुग़यानी नहीं जाती। तो तुग़यानी तो है आंखों में, लेकिन आंसू इतने तवातर से गिरते जा रहे हैं कि अब वो ज़्यादा नहीं निकल पाते। लेकिन अफसोस है, गम है। खुदावंद आलम किसी तरीके से इन लोगों को किसी सूरत से नसीहत दे। मैं नहीं समझता कि ये हिदायत के काबिल है, इसलिए कि जो पैसों के खातिर इंसानों को कत्ल करें, अपने ही मुसलमानों को कत्ल करें, तो वो किसी सूरत से हिदायत कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बस ये है कि खुदावंद आलम हम पे रहम करे, किसी सूरत से इन लोगों का खात्मा करे और इनके पीछे जो क़ुव्वतें हैं उनको सजा, ऐसी सजा दे, ऐसी इबरतनाक सजा दे कि बस ज़माना याद करे, तारीख़ याद करे। और इसमें हमारे इमाम आखिर ज़मा के ज़ुहूर की बड़ी ज़रूरत है। खुदा आमीन। जज़ाकल्लाह नबी साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से आप शामिल हुए और सही बात आपकी कि सिर्फ शिया किलिंग वो भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में ज़ुबान के नाम पे, इलाके के नाम पे, जमात के नाम पे भी कत्ल गारतगिरी जारी है और इस पे तो बार बार मज़म्मत की जाती है। और ये होना चाहिए कि कोई भी मर रहा है, जो भी जी शऊर इंसान है, पाकिस्तानी है,
اس کو ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہونا چاہیے. تو شاید دشمن کو یہ پتہ چلی. یہ بہت ہی مٹھی بھر افراد ہیں جو زیارت ریزیڈنسی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کو گرانے میں آگے ہے. حسینیہ مدرسہ ہے پشاور میں، کراچی میں کوئی اعلیٰ شخصیت ہے شیعہ ہے اس کو مار رہی ہے. داتا صاحب، عبداللہ شاہ غازی، یہ تمام جو ایسے ثانیات ہمارے سامنے، اس پر ہم نے پروگرام بھی کیے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی لوگ ایسے ثانیات کو سنتے ہیں اور جو بھی سنتے ہیں کہ ایک انسان کا جو خون ہے وہ بہہ گیا ہے، تو اس پر اپنی مذمت ضرور کریں. چاہے کسی بھی انداز میں آپ اپنے ایم پی کو خط لکھ کے، کسی احتجاجی مظاہرے میں شامل ہو کے، لائیو کال کر کے، جمعے کی نماز کے دوران اپنے مولانا صاحب کو اگر آپ وہ کسی اور ہی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو ایسے ثانیات پہ اگر وہ گزر جائیں پاس سے ہی یا اس پر کوئی بات ہی نہ کریں تو تھوڑا سا آپ ضرور اٹھ کے کہیں کہ یہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے. آپ کسی بھی مسلک سے، بے شک کہ آپ شیعہ مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن مولوی صاحب آپ کو اس پر مذمت ضرور کرنی چاہیے. تو سب اگر اپنے اپنے تئیں جو بھی کسی منصب پہ ہے وہ تھوڑی سی آواز بلند کرے تو یہ منظر تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے، حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ورنہ اسی طرح خدا نخواستہ یہ حالات جاری رہیں گے اور ایک نہ ایک دن باری ہم سب کی آ جائے گی. تو اسی پر بات جاری ہے. صبح ہدایت کا آج کا خصوصی پروگرام جاری. انشاءاللہ بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.